اور ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں بیٹا سے، بیٹا جا ایک پیکٹ بیڑی کی پیکٹ لے کر آ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جا ایک پیکٹ سگریٹ لے کے آ، جا ایک پیکٹ گل لے کر آ، جا ایک جردہ دے کے پان لے کے آ۔ آج ہم اپنے بیٹے کو ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن آج کیا یہ باپ کی ذمہ داری؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دوں۔ ایک باپ ہے، ہر دن اپنے بیٹا سے کہتا ہے کہ جا بیڑی جو ہے ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ۔ وہ ایک دن گیا، معصوم ہے، چھوٹا ہے ابھی، بیڑی پینے سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، اس کو ابھی علم ہی نہیں ہے، ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس آپ کی ذمہ داری میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جا ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ۔ ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، 4 دن گیا، مسلسل جب وہ جاتا رہا تو ایک دن ان کے خیال آیا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر یہ چیز کیا ہے، یہ بیڑی پینے سے کیا ہوتا ہے، چلو میں بھی ایک پی کر دیکھتا ہوں۔ تو بیٹا نے ایک بیڑی نکالی اور بیڑی نکالنے کے بعد اس نے پی تو اس کو بڑا مزہ آیا۔ باپ پہلے سے تو حرام خور تھا، بیٹا بھی باپ کو دیکھ دیکھ کر حرام خور بن گیا۔ تو ایک بیٹا اگر بیڑی پیتا ہے، ایک بیٹا اگر آج، یہ تو مثال دے رہا ہوں، اگر غلط کام کر رہا ہے، اگر آج ایک بیٹا بے نمازی ہے تو کیوں؟ باپ کی وجہ سے، کیونکہ باپ وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ باپ بننا کمال نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بچہ پیدا کرنے کے بعد ایک اچھا باپ بن کر دکھائیے سماج کے اندر، حضرت لقمان علیہ السلام کی جیسا۔ ایک صاحب تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تنویر صاحب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں تو بہار میں بہت کم آتا جاتا ہوں، آنا جانا بہت کم لگا رہتا ہے، کیونکہ میں مالدہ کی سرزمین پر رہتا ہوں لگ بھگ آج سے 9 سال سے۔ میرا جتنا بھی پروگرام ہے سارا کے سارا، آپ جائیے خبر لیجئے، بنگال سے جو مقرر آئیے ان سے پوچھئے، میرا جتنا بھی پروگرام ہے نا، مدنا پور، اڑیسہ، ہگلی، دکن 24 پرگنا، اتر دناجپور، دکن دناجپور، مالدہ، کلیاچک، انہی سب علاقوں میں پروگرام ہوتا رہتا ہے، اور ادھر کے لوگ بہت زیادہ بیڑی پیتے ہیں۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ تنویر صاحب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا صاحب پوچھو، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتا صاحب کیا اسلام کے اندر ہر چیز کرنے کی دعا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا جیسے؟ تو اس نے کہا کیا چاول کھانے کی دعا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ پھر وہ بول رہا ہے، بنگلہ میں بول رہا ہے کہ مولانا بھات کھاور کی دعا আছে؟ ہم بولলাম আছে। বলছে যে দুধ খাওয়ার দোয়া আছে? আমি বলছি আছে। বলছে মৌলানা বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? ধট বোকা কোথাকার, আরে বিড়ি তো হারাম, বিড়ি খাওয়ার আবার কোনো দোয়া আছে নাকি? বলছে না মৌলানা বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে। বললাম বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? তুই কি করে জানলি? বিড়ি খাওয়া তো ইসলামে নিষেধ, বিড়ি খাওয়া তো ইসলামে হারাম, এটা কি করে পসিবল হতে পারে? বলছে না মৌলানা তাহলে আপনি জানেননি, আপনি একটু ভালো করে পড়াশোনা করেন, বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে। আমি তখন ওকে বলছি আচ্ছা বল তো বিড়ি খাওয়ার দোয়া কি? বলছে আল্লাহ হুম্মা বারিক লানা ফিমা বেড়ি টানা। বলছে এটা হচ্ছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া। देखिए बीड़ी तो पीते गलत काम कर, आप इस्लाम को लेकर मजाक भी कर रहे हैं। तो मैं जो बता रहा था मेरे भाइयों कि अगर बाप बनना चाहते हैं ना तो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम जैसा बाप बनने की आप कोशिश कीजिए। आपके बच्चे के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है आप वो जिम्मेदारी अदा करें, आप वो जिम्मेदारी निभाएं। यकीनन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो आपका लड़का, आपका बच्चा गलत कामों से बचेगा, आपका लड़का बुराई से बचेगा और आपका लड़का हरामखोर बनने से भी बच जाएगा। तो आइए क्या बता रहा था, अल्लाह का डर। मेरे भाइयों ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर, एक इंसान को अल्लाह का डर किस तरह गुनाहों से बचाता है। आइए एक वाक़या मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वाक़या जो मैं बताऊँगा ये वाक़या आपको कहाँ मिलेगा, एक किताब है उसदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा, उस किताब के अंदर ये वाक़या आप देख सकते हैं कि एक इंसान को अल्लाह का डर, एक नौजवान को अल्लाह का डर किस तरह गुनाहों से बचा लेता है। कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते से जा रहे हैं, सामने में एक बहुत बड़ा जंगल है, वो जंगल में इंटर करते हैं, जंगल में घुसते हैं तो उनकी नज़र एक बकरी के चरवाहा पर पड़ती है और देख रहे हैं कि वो नौजवान, उसदुल गाबा का वाक़या है, देख रहे हैं कि एक नौजवान के पास बहुत सारी बकरियां हैं और वो बकरियां चरा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके पास जाते हैं और उसकी आजमाइश के खातिर उनसे कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ नौजवान, बीनी शातन, क्या मुझे एक बकरी फ़रोख्त करोगे? क्या तुम एक बकरी मुझे बेचोगे? वो नौजवान कहता है, ऐ अजनबी शख्स, मैं आपको जानता तक नहीं, ऐ अजनबी, ऐ
इंसान मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप बिल्कुल मेरे पास, मेरे नजदीक अजनबी, अननोन पर्सन है, मैं आपको नहीं जानता। आप ये कह रहे हो कि इन बकरियों में से एक बकरी मैं आपको बेच दूं, एक बकरी मैं आपको फरोख्त कर दूं, तो सुनो अल्लाह की कसम, मेरे सामने मेरे पास जितनी भी बकरियां हैं, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं, एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उसका इम्तिहान लेने के लिए, उसकी आजमाइश के लिए कहता है, ऐ नौजवान कोई बात नहीं, मैं मुसाफिर हूँ और मेरे अलावा और तेरे अलावा यहाँ पर कोई दूसरा इंसान भी मौजूद नहीं है, यानी कोई तीसरा यहाँ पर मौजूद नहीं है। चारों तरफ सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। तुम एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो, एक बकरी मुझे बेच दो, अल्लाह की कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और हाँ, जब तुम घर में जाओगे और तुम्हारा मालिक तुमसे सवाल करेगा, तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा, तुम्हारा मालिक तुमसे आस्क करेगा कि बताओ मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ चली गई, मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ खो गई, तो तुम अपने मालिक से जवाब दे देना कि आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, आज जंगल के अंदर चीड़ फाड़ खाने वाला एक दरिंदा आया था जो एक बकरी निगल कर चला गया या एक बकरी खाकर चला गया। ये उनको जुगाड़ दे रहे कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के मालिक से झूठ बोल देना, मालिक से कह देना कि जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, एक बकरी खाकर चला गया। देखिए अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गुनाहों से बचाता है, किस तरह गलत कामों से और चोरी से बचाता है मेरे भाइयों। उसके बाद वो नौजवान कहता है कि चलो ठीक है मैं मान लिया, चलो मैं मान लिया, आपकी बात सुनकर मैं अपने मालिक से झूठ बोल दिया, मैं अपने मालिक से झूठ कह दिया कि आज जंगल में एक भेड़िया आया था और वो भेड़िया एक बकरी खाकर चला गया, एक बकरी निगल कर चला गया। हो सकता है कि मेरा मालिक मेरी बातों का एतबार कर ले, मेरी बातों का भरोसा कर ले, मेरी बातों का यकीन कर ले, बिलीव कर ले। मैं तो दुनिया में अपने मालिक की नजर से बच जाऊंगा, मैं तो दुनिया में अपने मालिक के हाथों से बच जाऊंगा, लेकिन जो मेरा मालिक का भी मालिक है, जो मेरा रब है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा राज़िक है, कल क़यामत के दिन मैं उसकी अदालत में जब मेरी पेशी होगी, उसकी अदालत में जब मुझे खड़ा किया जाएगा, बताओ उस दिन मैं कैसे बचूंगा, उस दिन मैं कैसे बचूंगा। तो ये होता है अल्लाह का डर। इस चीज को हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों, इस एहसास को हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो यकीनन आपकी दुनिया भी बदल जाएंगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएंगी और आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़रूरी है अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करने की। अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर ही वो चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से बचा सकती है मेरे भाइयों। इसलिए तो बार बार मैं आपको ये पैगाम और मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने अंदर बस अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। और वो एक वाक़या देखिए, क्या माँ बेटी से कहती है कि बेटी दूध में पानी मिला ले। रात के अंधेरों में एक माँ देखिए किस तरह अल्लाह का डर उसको गुनाहों से बचा रहा है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला ले। अगर आप में से कोई चाय बेचने वाले हैं तो आप भी सुने, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा 1 किलो दूध में 17 किलो पानी की मिलावट करते हैं। 1 किलो दूध में 17 किलो पानी मिलाते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखो मेरा दूध जो है ना ये ओरिजिनल दूध है, मेरी जो चाय है ना ये ओरिजिनल दूध की चानी है, एक बूंद भी इसमें पानी की मिलावट नहीं है। आज कहते हैं, जरा आप भी सुनिए, आप लोगों का हुआ एक बार कर दीजिए ना जो करना है, बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? छोड़ जाता है। जो बोल रहा था कि एक माँ, चल लगाइए, छोड़ जाता है। चलो ठीक है, चलिए हो गया। तो माँ
अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला ले। बेटी ने कहा नहीं माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ पूछती है क्यों नहीं मिलाएगी दूध में पानी? बेटी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का ये फरमान है कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सजा का मुस्तहिक होगा, उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा मिलेगी। बेटी ने जवाब दिया। माँ कहती है अरे बेटी तो अभी छोटी है, अभी तू बच्ची, अभी नादान है, अरे जा दूध में पानी मिला दे, जा दूध में पानी की मिलावट कर दे। अरे उमर को थोड़ी ना पता चलेगा, उसको थोड़ी ना मालूम चलेगा कि तुमने दूध में पानी मिलाई हो, जाओ दूध में पानी मिला दो। अब बेटी का जवाब सुनिए। बेटी जवाब देती है, ऐ मेरी माँ, आप ये कहती हो कि मैं दूध में पानी मिला दूं, ये भी कहती हो कि अगर मैं दूध में पानी की मिलावट करूंगी, दूध में पानी मिलाऊंगी तो हजरत उमर को पता नहीं चलेगा। अरे माँ, अरे मेरी माँ अब सुनो, हो सकता है कि आज मैंने दूध में पानी मिलाई, मैं उमर की नजर से बच गई, दुनिया में मैं उमर के हाथों से बच गई, मैं दुनिया में हजरत उमर की सजा से बच गई। लेकिन ऐ मेरी माँ, जो हजरत उमर का भी मालिक है, जो मेरा भी मालिक है, जो आपका भी मालिक है, मैं कल कयामत के रोज उसकी सजा से नहीं बच पाऊंगी, उसकी नजर से नहीं बच पाऊंगी और उसकी पकड़ से नहीं बच पाऊंगी। ये होता है अल्लाह का डर। जरूरी है आप अपने अंदर इस चीज को पैदा करें। आइए और एक हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। कई लोगों, कल कयामत के रोज, डे ऑफ जजमेंट, यानी पलड़ाई के दिन, कयामत के दिन, बदले का दिन, हिसाब व किताब के दिन के बारे में फरमाते हैं, ऐ लोगों, कल कयामत के रोज ये सही हदीस के मुताबिक ये जो हम दिन के उजाले में अपने सर के ऊपर जो सूरज देखते हैं, ये सूरज ये 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। दूसरी सही हदीस के मुताबिक ये सूरज 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। आज सूरज हमसे कितनी मुसाफत पर है? लाखों, हदीस को जरा सुनिए, लाखों करोड़ों मील की दूरी पर और मुसाफत पर यह सूरज आज हमारे ऊपर है। लेकिन मेरे भाइयों, कल कयामत के रोज जरा देखिए और सोचिए, उस मंजर को जरा याद कीजिए कि कल कयामत के रोज 1 मील या 3 मील की दूरी पर सूरज आ जाएगा, बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, बिल्कुल निकट आ जाएगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे भाइयों, जरा सोच कर देखिए, जरा तसव्वुर कीजिए कि आज अगर गर्मी के दिनों में, अब मान लीजिए सुबह सूरज तुलू होता है, शाम में सूरज डूब जाता है, गुरूब हो जाता है, उसके बावजूद भी गर्मी के दिनों में रात के 12 बजे अगर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, करंट चली जाती है, तो हम सूरज की तपिश को और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सूरज के गिरने की परेशानी को और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमारी सारी रात नींद हराम हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया का हाल है, ये दुनिया के हालात है मेरे भाइयों। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए कि कल कयामत के रोज ये सूरज लाखों मील की दूरी पर नहीं, करोड़ों मील की मुसाफत पर नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि 3 मील की दूरी पर या 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। ऐसे मौके पर और ऐसी परिस्थिति और ऐसी हालात पर अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से और सूरज की तपिश से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। कितने प्रकार के लोगों को? 7 प्रकार के लोगों को। उनमें से एक प्रकार के लोग कौन होंगे? एक प्रकार के लोग वो होंगे जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक मनसब वाली, पैसा वाली, ओहदा वाली, दौलत वाली एक खूबसूरत सी लड़की उसको दावत गुनाह दे रही है, उससे कह रही है कि चलो कटिहार चलते हैं, कटिहार मेला से घूम कर आते हैं, कटिहार वो होटल में जाकर एक नाइट ठहर कर आते हैं, चलो ये काम कर कर। एक ही चीज़ बताऊं कि वो दावतें यानी गलत चीज़ों की तरफ वो दावत दे रही है आपको। एक किसी को
دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ نوجوان یا وہ انسان اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں انی اخاف اللہ، نہیں میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اب کوئی لڑکی کسی کو بلا رہی ہے دعوت، چلو مکئی کی کھیت میں چلتے ہیں، آج تو جلسہ ہو رہا ہے، سب جلسے میں موجود ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یا کوئی لڑکی آپ کو فون کر کے اپنے گھر میں بلا رہی ہے کہ آ جاؤ، سب جلسے میں چلے گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، چلو آ جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن نہیں، اگر آپ ان کو یہ کہہ کر جواب دیتے کہ نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی میرے بھائیوں، تو آپ تبھی سمبھو ہے کہ آپ اس برائی سے بھی بچ جائے، اور کل قیامت کے روز آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ بھی نصیب